Student, in a new session of biology, and today I am going to discuss one of the most important topic for medical exams, and that is human physiology, body fluid and circulation. If you want to be a doctor in the future, if you want to select in NEET exams with more than 700 marks, then come with me. I will teach you whole of the biology by simple tricks and mnemonics. But before going to the tricks and mnemonics, I want to discuss the specification about the detailed structures of human physiology, how the different functions are completed in our body for life activities. Then see the specific lecture about the body fluid and circulation. आज के लेक्चर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ चलिए और देखिए क्या स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th NCERT का टॉपिक है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट और एम्स एग्ज़ाम में अच्छे रैंक से सीट पाने के लिए। इसी 11th NCERT का नीट सिलेबस में एक पार्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन में एक बहुत ही टिपिकल पार्ट दिया गया है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड व्हाट आर देयर फिजियोलॉजी। टुडे आज के लेक्चर में हम उसी ह्यूमन हार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लुक दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का, बट दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। हाउ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर हार्ट इज रिप्रेजेंटेड एंड गिवन बाय नेचर इन आवर बॉडी। इसी हार्ट के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले एक दो पॉइंट्स आपको समझना होगा कि जो ह्यूमन हार्ट नेचर ने हमें दिया है, इस ह्यूमन हार्ट का देने का रीजन क्या है, कारण क्या है, फंक्शंस क्या है इसके। इन आवर बॉडी एवरी टाइम all the cells, all the tissues, all the organs need a lot of nutrients. Every living cells require oxygen and release carbon dioxide. The body tissue, the body organs like our brain, like our kidney, like gonadal parts, like our muscles, like our bone, always need nutrients, oxygen, hormones, vitamins. But how these components means oxygen, nutrients, vitamins, hormone supply to the different part of body, कैसे हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे मेरे लेग हैं, मेरा हैंड है, मेरा ब्रेन है, किडनी है, इन सभी पार्ट में न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, विटामिन्स को और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंजाइम्स को सप्लाई किया जाए। और उसी सप्लाई करने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है हार्ट। That means one thing you must remember before going to discuss the structural organization of human heart, that this heart and their related structures are responsible for transporting the different kind of substances, hormones, vitamins, minerals, enzyme,
from one side of the body to the different side of body. Let us come and start the human heart structures. First of all of you remember that human heart is mesodermally derived structure. This is the question, very important question for NEET and exam. What is the origin of this human heart? The origin of human heart is how this human heart originate. The human heart is originated from mesoderm. In our embryonic layer, the mesoderm is formed between ectoderm and endoderm in the embryo, and from mesoderm this heart and their related structures are derived. The origin of human heart is mesoderm. First point. Second point, what is the shape of this human heart? What is the shape? इसका shape क्या है? The human heart जो आप देख रहे हैं ये structure, it is fist like. Fist means बंद मुट्ठी के समान. The human heart is fist like in shape. Second point is shape. Shape is clenched fist. CLEANCHED, clenched fist like. Clenched fist means बंद मुट्ठी. अपने हाथों को इस तरह से मैं बंद कर दूं तो मेरे जो बंद मुट्ठी है, क्लिंच्ड फिस्ट इसको कहेंगे, और इसी शेप का या इसी साइज का ये ह्यूमन हार्ट होता है. ओरिजिन इज मेसोडर्मल, शेप इज क्लिंच्ड फिस्ट लाइक. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट इन आवर बॉडी where the heart is present? Look this diagram. इस डायग्राम को आप देखिए. द हेड रीजन, नेक रीजन, चेस्ट रीजन, एब्डोमेन रीजन, ये डिफरेंट रीजन से 4 रीजन हमारे बॉडी के हैं. हेड, नेक, चेस्ट और एब्डोमेन. अब इस नेक के नीचे की तरफ आप ध्यान से देखिए. नेक के नीचे वाले पार्ट्स में अगर हम आएंगे, देन चेस्ट रीजन को थोरैक्स बोला जाता है, और ये एब्डोमेन तो एब्डोमेन कहलाता ही है, बट ये चेस्ट जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज थोरैक्स. और इसके अंदर आप आएंगे तो आप देखिए नेक से लेकर के इस रीजन के बीच में पूरी एक बॉडी कैविटी है. नेक रीजन से जैसे ही आप नीचे आएंगे, इस रीजन, मेरे दोनों हाथ को बीच में आप देखिए तो क्या है, एक स्पेशल कैविटी है, एंड दैट इज द बॉडी कैविटी. और ये बॉडी कैविटी इस नेक से यहाँ तक बीच से डिवाइडेड है. एक मस्कुलर पार्टीशन है. यू ऑल ऑफ नो दैट दिस मस्कुलर पार्टीशन इज डायफ्राम. दिस बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू अपर thoracic cavity and lower abdomen by a muscular partition. This is known as diaphragm. ऐसे है ये स्ट्रक्चर, ऐसे आर्क्ड है. और इसके नीचे क्या है, एब्डोमेन, और इसके ऊपर जो चेस्ट हम कहते हैं, अंदर की तरफ क्या है, थोरैक्सिक कैविटी है. और इस थोरैक्सिक कैविटी को आप फिर से देखिए ध्यान से. इसमें इस थोरैक्सिक कैविटी में लंग, फेफड़ा एक साइड में ये होता है, दूसरा लंग इधर होता है, और दोनों लंग के बीच में बिटवीन 2 लंग्स इन द थोरैक्सिक कैविटी द ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट. तो ये ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, इसको अगर आप समझना चाहें तो देखिए, ये एक ट्रैकियल रीजन होगा, इधर एक लंग होगा और इधर एक लंग होगा. दोनों लंग्स को आप देखिए, एक लंग इधर से है ऐसे, और दूसरा लंग इधर से है, और दोनों लंग के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हार्ट प्रेजेंट होता है. मीन्स यहाँ बिल्कुल बीचों बीच दोनों लंग्स के बीच है, बट नीचे नहीं, ऊपर की तरफ थोरैक्सिक कैविटी में. The human heart is located in the thoracic cavity between 2 lungs, 2 lungs के बीच में. बट क्या ये सिमेट्रिकल है? आंसर है नहीं, ये हार्ट सिमेट्रिकल नहीं है. क्यों भाई? तो इस हार्ट के स्ट्रक्चर को जरा बिल्कुल फोकस करके आप देखिए तो ये अपर, मतलब ये बेसल रीजन है और ये टिप रीजन है.
ह्यूमन हार्ट की विशेषता है, जिसको हम नीचे देखते हैं वो टिप कहलाता है और ऊपर बेस कहलाता है। दैट मीन्स ये इसका बेस होता है और ये टिप होता है। टिप मीन्स टॉप का भाग, शीर्ष का भाग, और ये नीचे की तरफ है टिप। यह टिप अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं ह्यूमन बॉडी को, तो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। ये बाइसेक्ट किया हमने अपने बॉडी को, तो क्या ये बिल्कुल सेंटर में हार्ट प्रेजेंट है? आंसर है नहीं। इस हार्ट का टिप रीजन इस सेंट्रल एक्सिस से लेफ्ट में, कहाँ पर? लेफ्ट में, ये लेफ्ट रीजन है। जस्ट मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो हमारा हार्ट जो है ये मिडिल बॉडी एक्सिस से लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। अब ये कितना टिल्टेड होगा यहाँ पर? तो जो मिडिल बॉडी एक्सिस है उससे 9 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग इस नंबर को, 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। तो बिल्कुल बीचों बीच तो है, लेकिन इसका टिप बिल्कुल मिडिल में ना होकर के लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है। और हमारे बॉडी के मिडिल एक्सिस से लेफ्ट में कितना मुड़ा है? 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम मिड बॉडी एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है कि द हार्ट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity between 2 lungs. The tip of heart tilted left towards the body, and this is about 9 centimeter left to the middle body axis. 9 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, बट मिडिल में है, टिल्टेड हो चुका है। अब अगला स्टेप आप देखें इसमें, जब कभी भी हम इस हार्ट को देखें तो लुक सिंपल, एक छोटा सा डायग्राम मैं हार्ट का बना देता हूं, आप इसको देखिए। दिस इज द स्पेसिफाइड हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हार्ट है ह्यूमन का, ये हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और इसको मैंने क्या बोला था कि ये इस मिडिल एक्सिस से कितना अवे है? तो आंसर है 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? और नीचे ये इस डायफ्राम से जो मस्कुलर पार्टीशन हमारे बीच में है, उस मस्कुलर पार्टीशन पर टिका हुआ है। अब क्या कॉन्सेप्ट इसका कहता है? कहता है कि यह ह्यूमन हार्ट बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। क्या ये हम हार्ट बिल्कुल ओपन एरिया में है? आंसर है नहीं। द ह्यूमन हार्ट इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये मेम्ब्रेनस कवरिंग आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट इस कलर की, जो वाइट कलर का ये पार्ट आता है इधर से, इसी कवरिंग के अंदर की तरफ है। दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट इज एक्सटर्नली कवर्ड विथ ए मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ओके। अब दूसरा स्टेप आपको क्या याद रखना है फॉर मेडिकल एग्जाम? ये पेरिकार्डियम हो गया, ये हार्ट हो गया, दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। दोनों हार्ट, मतलब हार्ट और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, एंड दिस फ्लूइड इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आप पूछेंगे कि सर ये पेरिकार्डियम और हार्ट की वॉल के बीच में फ्लूइड क्यों है? इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का रोल क्या है? अरे अपने मन से आप सोचो। इफ फ्लूइड इज एब्सेंट देन हार्ट विल बी ड्राई। अगर ये फ्लूइड नहीं रहता, लिक्विड नहीं रहता, तो हो सकता था कि हार्ट ये ड्राई हो जाए। एक पॉइंट। दूसरा, ये हार्ट बार बार क्या करता है? ये इस तरह से पंपिंग करता है। पंपिंग 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स बीटिंग होती है इसकी। 72 बार 72 टाइम्स ये पंप करता है इन 1 मिनट। और जब ये बार बार पंप करेगा तो इसकी पंपिंग की वजह से इसकी वॉल में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन से जैसे ये किसी न किसी आर्गन से टकराएगा, पंप करेगा, तो टकराने से ये इसमें इरोजन काज हो सकता है। तो उसके लिए नेचर ने इसको वाटर की एक लेयर दे दी है, फ्लूइड की एक लेयर दे दी है, जिसमें कि अगर पंप भी करेगा तो इसकी वॉल को कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन करे, क्योंकि लंग्स के रास्ते बहुत इन्फेक्शन होगा,
तो ये क्या लंग के अंदर आने वाला बैक्टीरिया और वायरस सीधे हार्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता था, लेकिन इसको नेचर ने प्रोटेक्ट क्या किया है, अगर वायरस और बैक्टीरिया आएगा तो सबसे पहले पेरिकार्डियम की इस मेम्ब्रेन से टकराएगा, वह उसे रोकेगा अंदर जाने से। और दूसरा, अगर इस मेम्ब्रेन से अंदर चला भी गया तो हार्ट के पास नहीं आ पाएगा, वह इस फ्लूइड के बैरियर में ही फंस जाएगा। और जो फ्लूइड जो होता है वो एंटीजेंस को किल करने वाला फ्लूइड होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस इसी फ्लूइड में मारे जाएंगे। इसीलिए ह्यूमन हार्ट के इस स्ट्रक्चर में जनरली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बाहर से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हार्ट नेचर के द्वारा हाईली प्रोटेक्टेड है, और ये मेडिकल के क्वेश्चंस में है। तो आप याद क्या रखेंगे कि ह्यूमन हार्ट इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन and this membrane is pericardium. Between pericardium and heart wall a fluid is present. This fluid is known as pericardial fluid. This pericardial fluid keep the heart moist, नम बनाए रखता है। This fluid keep the heart moist. Second, reduce the friction. Reduce मतलब कम कर देता, reduce the friction caused by pumping of heart. हार्ट की पंपिंग से जो फ्रिक्शन सरफेस पर क्रिएट होगा, बार बार अगर हम इस पर करें तो क्या होगा, ऐसे टकराएगा तो मेरे हाथ में छिल जाएगी स्किन, इरोजन हो जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगी। बट वाटर अगर रहेगा तो वाटर में बंद करें खोलें क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड थर्ड, दिस फ्लूइड एक्ट एज ऑस्मोटिक बैरियर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। दिस इज द पेरिकार्डियम। तो आपको याद रखना होगा कि हार्ट के बाहर की कवरिंग का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच के फ्लूइड का नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ से आता है, तो इसका आंसर होता है हार्ट की वाल और पेरिकार्डियम, ये दोनों ही इस फ्लूइड को लगातार सीक्रेट करते रहते हैं। क्योंकि ये डिफ्यूजन के द्वारा बाहर भी लॉस होता रहता है, तो जब ये कम होता होगा तो कहाँ से भरता होगा, तो हार्ट इसे भेजता होगा, और पेरिकार्डियम मीन्स पेरिकार्डियम और हार्ट दोनों मिल करके इस फ्लूइड को रिलीज करते हैं, जिससे कि फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। तो आपने कुछ पॉइंट्स देखा, हार्ट की ओरिजिन मेसोडर्मल, शेप क्लिंच्ड फिस्ट लाइक, पोजीशन इन द थोरैक्सिक कैविटी बिटवीन टू लंग, orientation, the tip of heart tilted towards left side about 9 centimeter away from the middle body axis। फिर आपने क्या देखा कि ह्यूमन हार्ट इज एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाई कवर्ड बाई पेरिकार्डियम। बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट विच कीप द हार्ट moist, reduce the friction and prevent from external infection। Okay students, now come to the next point. See, this is exclusive notes for NEET exam, NEET medical exam. If you see the heart externally and internally, this is the external portion of the heart. Students, please see here, external portion, I am not drawing the diagram of blood vessels which emerges out from heart or coming into the heart। मैं उस blood vessels को नहीं बना रहा हूँ जो हार्ट से निकल के बाहर जाती हैं और हार्ट के अंदर आती हैं। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं जो मेडिकल के ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक होता है। क्या है, हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। ये चेंबर कहलाता है, ये लेफ्ट, इधर ध्यान रखिएगा, इधर लेफ्ट होता है। आपको क्या करना है, ऐसे देखना है। क्यों? क्योंकि हार्ट पीछे नहीं होता, हार्ट हमेशा क्या होता है, आगे होता है, वेंट्रल सरफेस पर, फेस के साइड में। और वेंट्रल को देखने के लिए अपने बॉडी को रिवर्स कर दीजिए। तो आपके लेफ्ट हैंड में, ऐसे मैं हूँ तो इधर लेफ्ट होगा और इधर वाला पार्ट क्या होगा, राइट होगा। ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट।
दैट मीन्स ये हमेशा लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट लेफ्ट, और ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट राइट। कैसे आपने देखा इसको, तो आपने देखा कि वेंट्रल सरफेस पर हम ऐसे खड़े हो गए, तो ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। नाउ कम, ह्यूमन हार्ट इज डिफरेंशिएटेड into 4 chambers. How many chambers? 4 chambers. Upper 2 chamber is the atrium and lower 2 chamber is the ventricle. That means upper 2 chamber atrium and lower 2 chamber is of ventricles. It means left atrium, left ventricle, right ventricle. इतना हुआ। अब क्या है याद रखना है कि इस हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, दैट इज फॉर प्योर ब्लड। लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड होता है, एंड द राइट साइड इज ऑलवेज फॉर इम्प्योर ब्लड। तो हमारा हार्ट है, हार्ट के 2 हिस्से कर दीजिए। राइट साइड में कैसा ब्लड फ्लो करेगा, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, और लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड फ्लो करेगा, प्योर ब्लड, दैट इज द शुद्ध रक्त। अब टेक्निकली आपको मैं समझाऊं, प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, द ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। और इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर CO2 इज मोर देन O2। तो दोनों साइड में O2 CO2 होगा, लेफ्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और राइट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड होने से हम राइट साइड को इम्प्योर रीजन मानते हैं, ऑक्सीजन के ज़्यादा होने से लेफ्ट साइड को हम क्या मानते हैं, प्योर साइड मानते हैं। इतना तो आएगा। अब क्या होता है इसको देखिए, ये दोनों ही चीज़ें, मतलब राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम सेपरेटेड बाय ए सेप्टम एंड दैट इज सल्कस। एक्सटर्नल डिवीजन को सल्कस कहा जाता है और इंटरनल को सेप्टम कहा जाता है। That means left atrium and right atrium both are externally separated by sulcus, S-U-L-C-U-S. Right ventricle and left ventricle, both ventricles externally separated by again sulcus. मीन्स हमारा हार्ट बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है। बाहर का डिवीजन किसकी वजह से है, सल्कस की वजह से है, और अंदर का जब होगा तो हम इसको सल्कस नहीं बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे। नाउ कम, ये दोनों आर्ट्रियम है और दोनों वेंट्रिकल है। यहां भी आप देखिए ये डिवीजन है, ये आर्ट्रियम वेंट्रिकल से अलग है, दोनों आर्ट्रियम भी अलग अलग हैं, दोनों वेंट्रिकल भी अलग अलग हैं। आर्ट्रियम अलग है, वेंट्रिकल अलग है, और दोनों आर्ट्रियम इस दोनों वेंट्रिकल से सेपरेटेड है किसके द्वारा, तो आंसर है कोरोनेरी सल्कस के द्वारा। सिंपल, सल्कस। एंड द नेम ऑफ सल्कस बिटवीन बोथ आर्टरिया एंड बोथ वेंट्रिकल इज कोरोनरी सल्कस। क्वेश्चन होता है कि दोनों आर्ट्रियम और दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक्सटर्नल डिवीजन किसके द्वारा होता है, तो बोथ आर्ट्रियम और बोथ वेंट्रिकल के बीच में जो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, दैट डिवीजन इज बाय कोरोनरी सल्कस। किसकी वजह से होगा, कोरोनरी सल्कस की वजह से होगा। नाउ अब इसी को हम इंटरनली मान लेते हैं। सल्कस आप एक्सटर्नल याद कर लीजिएगा, अब इसको मैं इंटरनल आपको समझा रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिए, अब ये सल्कस नहीं रह जाएगा, इसके इंटरनल डिवीजन को समझिए कि हार्ट इंटरनली अंदर की तरफ से हार्ट 4 चेंबर में कैसे डिवाइडेड है। तो देखिए दोनों आर्ट्रियम के बीच में ऐसे, ये दोनों इंटरनल है। लुक दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स प्लीज, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम बोथ इंटरनली, अंदर से मैं बोल रहा हूं, इंटरनली डिवाइडेड बाय सेप्टम। अगेन कम टू द इंटरनल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, लुक दिस स्ट्रक्चर,
right left ventricle and right ventricle internally separated by again septum. This is the internal division, and both atrium and both ventricles दोनों के बीच में अब फिर आएंगे इस तरह से. Both are also separated by septum. Means two atriums separated by septum, two ventricles separated by septum, both atria, both ventricles separated by septum, but their name is different. इसका नाम अलग अलग होता है. कैसे होता है देखिए, जब दोनों आर्ट्रियम अलग अलग होगा तो इसको हम बोलेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? IA मीन्स इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. इंटर आर्ट्रियल, आर्ट्रियल है तो इंटर आर्ट्रियल, दोनों वेंट्रिकल है. देन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज, लुक दिस स्ट्रक्चर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होता है. ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट बोथ आर्ट्रिया इंटरनली, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट बोथ वेंट्रिकल्स इंटरनली. लेकिन अब अगर इसकी बात हम करें तो देखिए, ये आर्ट्रियम ऊपर है, नीचे वेंट्रिकल है, दोनों के बीच का है, तो इसको AB सेप्टम कहा जाता है. क्या बोलते हैं इसको? मैं बाहर निकालता हूँ, आप देखिए ध्यान से लाइनिंग को, मेरे यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ इसको. दिस इज नोन एज इनसाइड AV सेप्टम. A means arterio, V means ventricular and septum. तो ये बात भी याद हो गई आपको कि बोथ आर्ट्रिया इंटरनली सेपरेटेड बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, बोथ वेंट्रिकल इंटरनली सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, and arteria separated from ventricle by which structure? A partition है ना यहाँ पर. This partition between atrium and ventricle is known as AB septum, arterioventricular septum. बट एक नेचर ने इसमें बहुत अलग तरह का ट्विस्ट दिया है. क्या दिया है? तो आप देखिए इसको. ये जो AB सेप्टम है यहाँ पर, AB सेप्टम आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इस सेप्टम में पोर होता है ऐसे, यहाँ भी पोर होता है. क्लियर? क्यों पोर नेचर ने दिया है इस सेप्टम पर? कि हम इस आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ सके. आर्ट्रियम का ब्लड कहाँ आ सके? वेंट्रिकल में. तो यहाँ का भी तो आएगा. अब अंतर क्या होगा? तो आपको पता है कि इस आर्ट्रियम में प्योर ब्लड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, यहाँ प्योर ब्लड होगा, और यह प्योर ब्लड आर्ट्रियम से कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में. और यहाँ कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड होगा, और इम्प्योर ब्लड इस साइड से कहाँ आएगा? इस साइड में. किस? पोर के द्वारा. और इसके आगे क्या याद रखना है कि लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड हमारा है ये हार्ट का, इस लेफ्ट साइड में इस पोर को गार्ड करने के लिए, पोर को गार्ड करने के लिए वाल्व पाया जाता है. कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी हार्ट पेशेंट में वाल्व खराब हो गया है, तो वो वाल्व है क्या? वाल्व यहीं पर पोर को गार्ड करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है. और ट्रिकी पॉइंट याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, बाई मीन्स 2 वाल्व होते हैं, और राइट साइड में ट्राइकस्पिड मीन्स 3 वाल्व होते हैं. आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है? राइट साइड. इस लेफ्ट साइड में अगर आप आएंगे तो देखिए, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में 2 वाल्व हैं, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व. और जब हम राइट साइड में आएंगे, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ देखिए कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड. ट्राई मीन्स 3 वाल्व. तो राइट साइड में ह्यूमन के हार्ट में, राइट साइड मतलब ये वाले में, राइट साइड में ह्यूमन के हार्ट में 3 वाल्व होता है, और लेफ्ट साइड में 2 वाल्व होते हैं. मीन्स बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड में है और ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में है. इतना हुआ. अब आप थोड़ा इस स्ट्रक्चर को देखिए. यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ना, कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जो बीच में इधर राइट साइड है ना, राइट आर्ट्रियम है,
इस राइट आर्ट्रियम में एक डिप्रेशन दिख रहा है, थोड़ा हम और इसको क्लियर कर दें। ऐसे डिप्रेशन है, देखिए राइट साइड का जो ये सेप्टम है, यहाँ पर आपको एक गड्ढा दिखेगा, डिप्रेशन। आपको पता है दिस डिप्रेशन को मेडिकल में क्या नाम दिया गया है? फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, ये मेडिकल में पिछले साल नीट में पूछा था कि फोसा ओवेलिस कहाँ प्रेजेंट होता है नीट के एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा इसका? फोसा ओवेलिस इंटर आर्ट्रियल सेप्टम पर राइट साइड से प्रेजेंट होता है। ये गड्ढा क्यों पाया गया इस सेप्टम पर? तो इसके पीछे आंसर होता है कि मदर यूट्रस में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय यहाँ एक पोर होता है, छिद्र होता है। जब एक बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जन्म से पहले की बात है, बिफोर बर्थ, एक बच्चे में हार्ट जो बनता है, सबसे पहला ऑर्गन है जो हार्ट बन जाता है विदिन 1 मंथ। यहाँ पर जब हार्ट बनता है तो यहाँ उस बच्चे के अंदर एक पोर होता है, छिद्र होता है, इसको फोरामेन ओवेली कहा जाता है। और धीरे धीरे जब बच्चे का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है और जन्म होता है बच्चे का, तो मदर का प्लेसेंटा खींचता है, ऐसे खींच जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा तो जुड़ा रहता है, बच्चे बाहर आ जाता है, तो प्लेसेंटा खींचता है, जिसकी वजह से ये सेप्टम बंद हो जाता है ऐसे। अब बंद होगा तो गड्ढा तो रहेगा, क्योंकि प्लेसेंटा राइट साइड में ही होता है, तो दाहिने से खींचता है, तो ये गड्ढा यहाँ पर बन जाता है। और इसी गड्ढे को हम फोसा ओवेलिस कहते हैं, जो जन्म से पहले एक पोर था जिसका नाम था फोरामेन ओवेली। यहाँ याद रखना है कि कभी कभी कुछ बच्चों का ऐसा भी जन्म हो जाता है जिसके अंदर जन्म के बाद भी ये पोर बंद नहीं होता, ये पोर खुला रह जाता है, जिसको हार्ट पोर कहा जाता है। दिल में छेद है, बच्चे के दिल में क्या है? छेद है, मीन्स हार्ट पोर। जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो रहा था उसी समय इसको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से, रीजन बहुत सारे हैं, तो उसमें ये पोर खुला रहेगा, तो इसको हार्ट होल कहा जाता है, हार्ट होल। इसका प्रभाव लंग्स पर पड़ता है, फेफड़े पर। इस हार्ट होल से ब्लड निकल करके लंग्स में चला जाता है और लंग कॉन्जेस्ट हो जाता है, लंग्स जाम हो जाता है। फिर इसको बाद में सर्जरी के द्वारा स्टिचिंग कर दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना था? इसमें रखना था कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पोर जो होगा वहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पोर होगा वहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। और दोनों आर्ट्रियम के बीच में जो सेप्टम हमें दिख रहा है, उस सेप्टम पर एक डिप्रेशन होगा, राइट साइड से गड्ढा होगा, इसका नाम फोसा ओवेलिस है। जन्म के समय वह एक पोर था और उस पोर का नाम था फोरामेन ओवेली। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका है, एक्सटर्नल है पार्ट का। अब इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, बट स्टूडेंट्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अभी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम इसी हार्ट की इस एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेना है, ह्यूमन हार्ट के जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्या इसका फंक्शन होगा, कितने इसके पार्ट्स होंगे। देन आपको आना है इस हार्ट के स्ट्रक्चर पर, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे। देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।